हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम सीखेंगे हाउ टू लोकेट इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। सो इन द प्रीवियस क्लासेस वी ऑलरेडी डिस्कस विच टाइप ऑफ numbers are said to be irrationals, which type of numbers are said to be rationals, and yes, under root prime always represents an irrational numbers. Okay, if any prime number is given under the root, then that number always represents an irrational number. So today's class will be based on the location of irrational numbers on the number line. Okay, so I'm going to start today's class by one question. So everyone write the question, then we'll move to the next thing. So first of all, write the question. Locate root 2 on the number line. Okay, this is the question. Locate root 2 on the number line. First of all, I will discuss this question, then we'll move to the next thing, how to locate root 5, how to locate root 3, root 7, root 11, root 47, root 51, different type of numbers on the number line. Okay, so yes, before starting the topic, let me clear one thing which is very important and very necessary for the location of root 2 on the number line or any irrational number on the number line. Okay, so and that thing is Pythagoras theorem. बच्चों, I hope that you know very well Pythagoras theorem. मुझे पता है आप सबको पता है कि what is the Pythagoras theorem, but let me explain once again the Pythagoras theorem. This is the right angle triangle and you all know Pythagoras theorem is applicable for the right angle triangle, in which let ABC is the right angle triangle, B is 90 degree, opposite angle of right angle is said to be hypotenuse. I am taking H at the place of hypotenuse. BC I am taking base, but remember base and perpendicular always interchange with the simultaneously because it depends on the angles. Okay, this is not necessary, this is base always and always. When we rotate the triangle, then we'll obtain this side as base. But yes, hypotenuse is always same because this is the longest side and this is opposite side of the right angle. The relationship between hypotenuse, base and perpendicular was given by Pythagoras. That's why it is said to be Pythagoras theorem, and it is hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square, or hypotenuse equal to base square plus perpendicular square. So this is the formula, and yes, you can obtain base, you can obtain perpendicular, you can obtain hypotenuse whenever any two side is given. In right angle triangle, when any two side is known, then you can obtain the third side. And very easy. And one more thing related to the Pythagoras theorem is that its converse is also true. When this relation is satisfied in any triangle, means longest side, the square of longest side is always equal to the sum of the squares of the other two sides. If this rule is followed by any triangle, then that triangle is always a right angle triangle. So this is the converse of Pythagoras theorem, and both are true. Means straight statement is true and converse is also true, right? So now we are moving to the problem, but before starting, one more thing I want to clear. This is, suppose this is 1 centimeter, I am taking centimeter, and again I am taking 1 centimeter here. Base is 1 centimeter, perpendicular is 1 centimeter. So what are you thinking about the hypotenuse? What you will obtain here? So simply H is equal to under root base square plus perpendicular square. Am I right? Okay, so what is base? Base is 1, so it is 1 square, plus perpendicular is also 1, so it will be 1 square, and 1 square is 1, 1 square is 1, it means under root 2. So this side will be root 2. Am I right? अगर base 1 लेते हैं, perpendicular भी 1 होता है, then hypotenuse जो होता वो root 2 हो जाएगा, right? अभी सब कुछ क्लियर है बच्चों? अभी सब समझ में आ रहा है? अगर हम बेस लेते हैं 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट, परपेंडिकुलर भी लेते हैं 1 यूनिट, तो हमें हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या मिलेगा? रूट 2 मिलेगा. ओके, सो विल अप्लाई द सेम थिंग ऑन द लोकेशन. सो मैं एक बात आपसे और क्लियर करना चाहता हूं बच्चों. एक बात मुझे बताइए, अगर मैं कहूं 1 यूनिट इक्वल टू
2 centimeter. 1 unit equal to 2 centimeter. Then what is 2 unit? Can you tell me what is 2 units? It will be 4 centimeter. 10 units. Suppose I am asking to you what is 10 unit? It will be 10 2 ja 20 centimeter. So when I decided the unit first, then it is very easy to represent irrational numbers on the number line. So first of all, I am taking here 1 unit equal to 2 centimeter. You can take 1 unit equal to 2 centimeter, 3 centimeter, whatever you want, right? So I am taking here 1 unit equal to 2 centimeter. Then we'll draw one straight line, and this is the number line 0. Again you will take 2 centimeter, then it is 1, 2 centimeter, then 2, 2 centimeter, 3, and so on. 2 centimeter minus 1, 2 centimeter minus 2, because 1 unit equal to 2 centimeter. We have taken here 1 unit equal to 2 centimeter. तो जितना भी 1 यूनिट मिलेगा हम हमेशा उसको क्या एज्यूम करेंगे? 2 सेंटीमीटर. बच्चों एक भी डाउट नहीं होना चाहिए. 1 यूनिट जब भी लीजिएगा 2 सेंटीमीटर होगा. 1 यूनिट जब भी लीजिएगा कितना होगा? 2 सेंटीमीटर होगा. लेट मी चेक द स्क्रीन. स्क्रीन इज विजिबल टू यू? यस इट इज ओके. तो 1 यूनिट ऑलवेज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. अब एक बात मुझे बताओ, बेस 1 unit, perpendicular 1 unit, then what are you thinking about the hypotenuse? By Pythagoras theorem we'll obtain it is root 2 unit. Any doubt? Root 2 units. So I am taking base as 1 unit, and now the main thing, the perpendicular means 90 degree at this point. Okay, so I am assuming this is O and this is A. Any doubt? OA. So now OA is equal to 1 unit. This is O, this is A. OA is equal to 1 unit. So how to draw perpendicular at any point? Do you know? Suppose this is the end and we want to draw perpendicular at this point. So simply take center here and make one arc. First cut, second cut. First cut always represent, without changing the radius, it represents 60 degree. Okay. If you are taking center here, suppose I am taking A. आपने ए को सेंटर बनाया, आपने आर्क लिया, तो पहला कट जो कर रहे हैं दिस रिप्रेजेंट ऑलवेज 60 डिग्री, सेकेंड रिप्रेजेंट 120 डिग्री. अब इन दोनों का मिड आएगा. देखो यहां से लेके एक कट ऊपर करना है, यहां से लेके सेंटर एक कट ऊपर करना है. इसको मिलाएंगे तो जो एंगल बनेगा दिस इज 90 डिग्री. ओके, दिस इज 90 डिग्री. आई होप दैट यू हैव स्टडीड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एंगल विद द हेल्प ऑफ विदाउट हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर इन प्रीवियस क्लासेस, क्लास 8. ओके, सो अगर आप प्रोटेक्टर से भी करना चाहो तो कर सकते हो. हम लोग प्रोटेक्टर के बिना भी करेंगे. सेंटर लेंगे, यहाँ एक आर्क करेंगे, फर्स्ट कट, सेकंड कट, फिर एक कट यहाँ करिएगा, फिर यहाँ से सेंटर लेके यहाँ करिएगा. ये हमेशा 90 डिग्री ही बनना चाहिए, राइट भाई? आप लोग बिल्कुल सही बनाइएगा. ये कितना बनना चाहिए? 90 डिग्री. एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री. नाउ बेस इज 1 यूनिट, बट परपेंडिकुलर शुड बी 1 यूनिट. बेस भी 1 यूनिट लेना है, परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट लेना है. तो आपके पास देखिए 2 चॉइस है. आप तो या तो इसको स्केल से मेजर करो, उतना कट ऊपर कर लो, पहले तरीके. नहीं तो आप सेंटर यहाँ लिए, एक आर्क यहाँ ले लो, आर्क लेके जितना आर्क नीचे कट किया उतना ही आर्क ऊपर ले लो. मीन्स जितना OA है उतना ही एक पॉइंट B ले लो. यहाँ पे AB क्या करना है भाई? OA इक्वल टू AB लेना है. क्यों? क्योंकि बोथ आर 1 यूनिट. B मिल गया यहाँ पे. अब क्या करो? OA को मिला दो, OB को मिलाओ, OB को. ठीक है, अभी देखो दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 1 यूनिट. सो हाइपोटेन्यूज विल बी रूट 2 यूनिट. 1 यूनिट 1 यूनिट 90 डिग्री. व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? 1 यूनिट बेस, 1 यूनिट परपेंडिकुलर, 90 डिग्री एंगल. बेस लेना है 1 यूनिट, परपेंडिकुलर लेना है 1 यूनिट, एंगल लेना है 90 डिग्री. देन द हाइपोटेन्यूज विल बी रूट 2 यूनिट. बच्चों समझ में आ रहा है? बेस लेना है 1 यूनिट, परपेंडिकुलर लेना है 1 यूनिट, एंगल होना चाहिए 90 डिग्री. द हाइपोटेन्यूज विल बी रूट 2 यूनिट बाय द पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, तो अभी जो हमें मिला OB जो है वो क्या है? OB इज रूट 2. OB इज रूट 2. लेकिन OB हमारा नंबर लाइन पे नहीं है. ये जो OB आपको दिख रहा है इट इज रूट 2, नो डाउट. दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 1 यूनिट एंड दिस इज रूट 2. लेकिन ये जो रूट 2 आप देख रहे हो बच्चों ना, ये अभी रूट 2 नंबर लाइन पे नहीं, इसको नंबर लाइन पे लाना है. तो आपके पास फिर से 2 चॉइस है. या तो आप OB को स्केल से मेजर करके ला दो नीचे सीधे,
या फिर सेंटर लो ओ पर और एक आर्क बिल्कुल नीचे ला दो ऐसे, सेंटर यहाँ लेना है और ये आर्क बिल्कुल नीचे आना चाहिए ऐसे, ठीक है। ये बिल्कुल जैसे आप सर्कल बनाते हो वैसे इसको नीचे ला दिए। और ये जो हमारा अभी OB था इसको मान लेते C पर आ रहा है, तो OB इक्वल टू OC बिकॉज बोथ आर द रेडियस। अगर हम O को सेंटर लेके, अगर हम कहीं लेते हैं O को सेंटर, यहाँ से एक ऐसे सर्कल बनाते हैं तो जो लेंथ यहाँ का होगा वही लेंथ यहाँ का होगा बिकॉज बोथ आर रेडियस, ठीक है। तो अभी OB इक्वल टू OC क्या हो जाएगा, रेडियस है। तो देखिए सो C रिप्रेजेंट √2, दिस C रिप्रेजेंट √2, ठीक है। बच्चों समझ में आया √2 कैसे बनेगा, समझ में आया √2 कैसे बनेगा। बेस 1 यूनिट लेना है, परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेना है, तो जो हाइपोटेन्यूज होगा वही हमारा होगा √2। इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन इस बार 90 डिग्री के लिए हम लोग बिल्कुल प्रोट्रैक्टर की तरह करेंगे, ज्यादा हौच पौच, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइंस हो जा रहा है तो समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। चलो देखो, दिस इज 0 -1, एक कितना यूनिट होगा, 2 सेंटीमीटर लीजिएगा क्योंकि थोड़ा स्पेस रहेगा, क्लीन फिगर बनेगा, ठीक है। बेस लेना है 1 यूनिट, ये हो गया 1 यूनिट। यहां पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और परपेंडिकुलर भी कितना होना चाहिए, 1 यूनिट। मेजर कर लीजिएगा यहां से, जैसे यहां ले रहे हैं वैसे ये 90 डिग्री बनना चाहिए, 90 डिग्री। अब यहां से जो, अगर इसको हम A मानते हैं तो ये जो B हमको मिला जहां पर ये 1 यूनिट पूरा हो रहा है, OB को ज्वाइन करेंगे तो OB रिप्रेजेंट व्हाट, √2 यूनिट, दिस इज √2। अब इसी √2 को हम नीचे ला देंगे हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर, सॉरी हेल्प ऑफ राउंडर। क्या करिएगा, कंपास या राउंडर की हेल्प से आप इसको सिर्फ नंबर लाइन पे ला देंगे और यही हमारा हो जाएगा √2, ठीक है। ये हो जाएगा √2। बच्चों बिल्कुल यही डायग्राम जाएगा, आप देख लीजिए, बेस 1 यूनिट, परपेंडिकुलर 1 यूनिट, देन हाइपोटेन्यूज विल बी √2 यूनिट। तो √2 कहाँ आ गया, 1 और 2 के बीच में, √2 बना लेंगे, √2, एनी डाउट। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2 ऑन द नंबर लाइन। ए रिप्रेजेंटेशन है √2 का नंबर लाइन पे। यू विल राइट द स्टेप्स, हाउ यू विल राइट द स्टेप। So first of all take 1 unit equal to 2 centimeter, taking base as 1 unit। क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए इंपॉर्टेंट, बस उतना समझ लो। बेस 1 यूनिट, परपेंडिकुलर कितना लेना है भाई, 1 यूनिट। देन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज जो आएगा इस केस में राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज वो आएगा √2। कैसे आ रहा है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये कैसे आ रहा है भाई, बाई पाइथागोरस थ्योरम, राइट, बाई पाइथागोरस थ्योरम। अभी सब क्लियर है, ठीक है। अभी तो बिल्कुल इजी था भाई, अभी आप कर लेंगे। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रखना कि बेस 1 यूनिट, परपेंडिकुलर 1 यूनिट, द हाइपोटेन्यूज विल बी √2 यूनिट, नो डाउट, वेरी गुड। अब क्वेश्चन आता है सर कि कैसे √3 को किया जाए। अगर √3 आ गया तो √7 आ गया, √5 आ गया, √11 आ गया, कोई भी नंबर आ गया तो कैसे करिएगा। चलिए देखिए, अब थोड़ा एक बात मुझे बताइए, √3 जैसे हमको करना है, अगर हम बेस ले लें √2, परपेंडिकुलर ले लें 1 यूनिट, गेस करो थोड़ा, ये 90 डिग्री है, यहां पर आपको हाइपोटेन्यूज क्या मिलेगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम, गेस। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर, व्हाट इज बेस, √2, तो इट इज √2 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इट इज 1, so it is 1 square. So now what you will get here, √2 square is 2, 1 square is 1, it means √2 plus 1 is √3, so hypotenuse will be √3. Any doubt? बेस अगर आपने लिया √2, परपेंडिकुलर यू आर टेकिंग 1 यूनिट, तो हाइपोटेन्यूज विल बी √3 बाय द पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से √3 आ गया। तो बच्चों एक बात मुझे बताओ, आपको तो √2 मिल रहा था, आपको तो √2 मिल रहा था, आप √2 पर अगर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा। अगर ये बात समझ में नहीं आया तो फिर से प्रीवियस करके देखो। आपने बेस लिया 1 यूनिट, परपेंडिकुलर लिया 1 यूनिट, चलो हाइपोटेन्यूज कितना मिला था, √2 यूनिट, बिल्कुल सही। अच्छा अब एक बात बताओ, यहां पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो 90 डिग्री और इसको लेते हो 1 यूनिट, तो अभी कंबाइन कर दो दोनों को, देखो अगर बेस, अभी बेस कितना हो गया, √2 यूनिट, परपेंडिकुलर 1 यूनिट, सो दिस लाइन विल बी √3 यूनिट। एनी डाउट, ये हो जाएगा √3 यूनिट। अभी फिर से अगर आपने यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 1 यूनिट का, तो अभी जो मिलेगा √4 मिलेगा, √4 मीन्स 2 मिल जाएगा। फिर आपने ड्रॉ किया तो √5 मिल जाएगा, फिर आपने ड्रॉ किया √6 मिल जाएगा,
बस आपको 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, √7 मिल जाएगा। फिर आपने ड्रॉ किया √8 मिल जाएगा। भाई इस प्रोसेस से हम देखेंगे कि एक स्पाइरल मिलेगा। तो सारे नेचुरल नंबर का एक स्पाइरल भी बनाया जा सकता है। हमेशा हाइपोटेन्यूज को हम बेस बनाते जाएंगे, जो हाइपोटेन्यूज मिलेगा उसको बेस बना देंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो हमको एक बाद वाला मिल जाएगा। तो ये बहुत ईजी वे है, लेकिन कैन यू इमेजिन हाउ टू ड्रॉ √51? ये थोड़ा लॉन्ग नहीं हो जाएगा? अगर हमको बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो ये बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा, ठीक है। हालांकि आप इसकी हेल्प से √3, √7 तक जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट आई एम गोइंग टू डिस्कस ईजी वे हाउ टू ड्रॉ बिगर नंबर ऑन द नंबर लाइन। ओके, ठीक है। चलिए, अगर आपको जैसे करना है √51, एक नंबर लेते हैं √51, तो आपको जस्ट 51 के पहले का परफेक्ट नंबर ढूंढना है। 51 के पहले का परफेक्ट स्क्वायर। डू यू नो व्हाट इज द परफेक्ट स्क्वायर? जो स्क्वायर्स होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। लाइक 1 इज द स्क्वायर ऑफ 1, 4 स्क्वायर ऑफ 2, 9 स्क्वायर ऑफ 3, 16 स्क्वायर ऑफ 4, 25। सो दीज ऑल आर परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको सिंपली 51 के जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर आपको ढूंढना है। यू विल सर्च वन परफेक्ट स्क्वायर जस्ट प्रीसीडिंग ऑफ द गिवन नंबर। उस नंबर के जस्ट पहले का परफेक्ट स्क्वायर आप फाइंड करिए। 51 नॉट परफेक्ट स्क्वायर, बिफोर जस्ट बिफोर नंबर इज 49 which is the perfect square and it is the square of 7. Am I right? 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। तो you will simply take 7 unit as base. What you will take? 7 unit as base, 1 unit as perpendicular. So what you will obtain here as per hypotenuse? 7 square plus 1 square. 7 square is 49 plus 1 square is 1. So 49 plus 1 it will be √50. Any doubt? It will be √50. 49 plus 1 √50। बच्चों √50 हमको मिल गया हाइपोटेन्यूज, लेकिन हमको 51 ढूंढना है। तो आप क्या करिए, फिर से यहाँ 1 यूनिट ड्रॉ कर दीजिए, 1 यूनिट। तो अभी जो आपको दूसरा मिलेगा दिस विल बी √51। बच्चों समझ में आया? √51। अब देखो एक बात समझ लो, प्रयास करोगे तो चीजों को समझ सकते हो, बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी है, बस समझने की देर है। एक बार समझ जाओगे तो सब आसान हो जाएगा। बेस लिया 7 यूनिट, परपेंडिकुलर 1 यूनिट, हेल्प ऑफ पाइथागोरस यू विल ऑब्टेन √50 हाइपोटेन्यूज। फिर इसको √50 मैंने क्या कहा, नेक्स्ट स्टेप में जो हाइपोटेन्यूज है उसको बेस बना देना है। तो √50 को क्या बनाना है? बेस बना देना 90 डिग्री। √51 आ गया। अगर √52 चाहिए तो एक और स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। सिमिलरली अगर और बड़े नंबर चाहिए तो आप उसके पहले का ढूंढे। आप वहां पर बस थोड़े से अरेंजमेंट करके नंबर को बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप 1 का ही स्क्वायर 1 यूनिट ही लो, आप 2 यूनिट ले सकते हो जैसा आपको जरूरत हो। आपको और बड़े नंबर करने, और बड़े चेंजेस करिए। तो ओवरऑल बस इतना याद रखना है आपको कि आपको रिप्रेजेंट करते वक्त पाइथागोरस थ्योरम बिल्कुल याद रखना है। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सो यू विल नेवर फॉरगेट द पाइथागोरस थ्योरम, पहली बात। दूसरी बात, बेस आपने जो भी लिया, अगर आप परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेते हो, आपने बेस जो कुछ भी लिया हो, बेस आपने जो कुछ भी लिया हो x ले लिया। अगर आपने परपेंडिकुलर लिया 1 यूनिट, तो एक बात हमेशा याद रखना, जो यहां का नंबर मिलेगा हाइपोटेन्यूज, ये हमेशा होगा √x² + 1। इसके स्क्वायर से एक ज्यादा होगा। जैसे यहाँ 7 है तो इसके स्क्वायर से एक ज्यादा होगा, बिकॉज स्क्वायर ऑफ 1 इज ऑलवेज 1। अगर यही 2 यूनिट लेते तो यहाँ पर 2 स्क्वायर आ जाता। कहां से आ रहा है सब कुछ? पाइथागोरस थ्योरम से। बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से सब कुछ आ रहा है। एक बार इसको फिर से रिवाइज करेंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम थिंग, so you will try by yourself. If you have any doubt, any query, so yes, you can write your problem, your doubt in the comment section. जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा आपके डाउट को सबसे पहले डिस्कस किया जाएगा। तो आई होप दैट देयर इज नो डाउट। अगर समझ में नहीं आया फिर से देखिए, फिर उसके बाद कमेंट लिखिए। और बच्चों एक बात और, ये वीडियो उन सभी बच्चों के साथ जरूर शेयर करिए जो बच्चे आपके क्लासमेट्स हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में। तो आप उनके साथ जरूर शेयर करिए और जुड़े रहिए मैथोलॉजी के साथ, क्योंकि हम बेहतर तरीके से आपको नई चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, आपको देने की कोशिश करेंगे। तो जितना ज़्यादा लोगों का जुड़ाव हमसे रहेगा, हमें उतनी ही एनर्जी मिलती रहेगी और अच्छा करने की। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।